Hello guys, good morning. Today we see the second type of inheritance, that is the sex linked inheritance. Now you know there are the two types of inheritance are there, autosomal inheritance and allosomal, means the sex linked inheritance. As per the presence of chromosome and the genes present on it, there are the two types of inheritance are there, autosomal and allosomal. Now that allosomal is known as the sex chromosomal inheritance. So what about this sex chromosomal inheritance? Sex linked inheritance or sex chromosomal inheritance. Now the genes present on the sex chromosome, जैसे कि ये देखो आप, इसमें आप लोग को एक डॉटेड लाइन दिखाई दी है क्रोमोसोम के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम वाई. तो ये जो है जीन्स की पोजीशन है. द जीन्स लोकेट्स ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज द सेक्स लिंक्ड जीन्स. क्या कहते हैं इसको? सेक्स लिंक्ड जीन्स. एंड बिकॉज बाय दिस जीन्स द कैरेक्टर्स आर इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मीन्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू सन और डॉटर, दैट इज कॉल्ड एज द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. सो क्या करेंगे अपन? द जीन्स locates on the sex chromosome which are responsible for inheritance of character from their parents to the offsprings, that is known as the sex linked inheritance or sex chromosomal inheritance. ऐसा कहते हैं. क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इसमें जो जीन्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, और ये सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होने वाले जीन्स क्या करते हैं कि उसी के मुताबिक जो भी कैरेक्टर वो डिटरमाइन करेगा, वही कैरेक्टर को पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग्स की तरफ लेके जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं अपन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. नाउ वी नो इन आवर बॉडी, मींस इन ह्यूमन बॉडी, देयर आर द 46 chromosomes are there. Of them one pair of chromosome, that is the sex chromosome, that is X chromosome and Y chromosome. As according to this, the genes locates on the X chromosome is known as X linked genes. इसको क्या कहते हैं अपन? X linked genes, and are inherit from the parents to their offsprings is known as X-linked inheritance. The genes present on the Y chromosome is known as Y-linked genes, and they are inherit from their parents to offsprings are known as Y-linked inheritance. Now, the suitable example for this one is, that is the X-linked and Y-linked are. Actually, which chromosomes are inherit together? Though the genes which genes are inherit together, though the genes locates on the non-homologous segment of X and Y chromosome. This one is the non-homologous segment, this is the homologous segment. There is the chance of recombination, either the gene change from X side to Y side and Y side to X side. But in here, in this region, as per the linkage and crossing over, we know the genes present on the non-homologous segment of sex chromosome, that is X chromosome and Y chromosome, are inherit together because this is a complete linkage. There is no any chance to crossing between this non-homologous segment of X and Y chromosome. So we call the genes present on the X chromosome, non-homologous segment of X chromosome is called as X-linked genes, and the inheritance is called as X chromosomal inheritance. पहला इसमें अपन X-linked और X-linked inheritance, and the genes present on the Y chromosome, that is called as Y-linked inheritance. In that way, there is two types is there in the sex-linked inheritance, X-linked inheritance and Y-linked. So यहाँ पे X-linked किसे कहते हैं? जो कि जीन्स नॉन होमोलॉगस सेगमेंट ऑफ X क्रोमोसोम पे है, अगर इसके द्वारा कुछ कैरेक्टर्स वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं X-linked inheritance. फॉर एग्जांपल, यू नो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस वन इज, कौन सा एग्जांपल है? दैट इज हीमोफीलिया, मायोपिया, that is color blindness, retinitis pigmentosa, and many more other characters are there. Those that one is because by the genes present on the non-homologous segment of X chromosome. Now here the another one is called as the Y-linked inheritance. The genes present on the Y chromosome that are inherit from Y chromosome to their parents, to their offsprings, to their from parents to their offsprings, that is called as Y-linked inheritance. Now the genes present on the non-homologous segment of Y chromosome is actually called as the Hollandric genes. कौन से जीन कहते हैं इसको? Hollandric genes.
and which one is responsible for अराइजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा हेयर्स ऑन द ईयर पिन्ना। आप लोगों को पता है बहुतांश लोगों के ईयर पिन्ना के ऊपर बारीक बारीक क्या होते हैं वो हेयर्स होते हैं। तो ऐसे जो हेयर्स आते हैं तो इस जीन की वजह से आते हैं, होलैंडरिक जीन्स, और ये ओनली आप लोगों को फाइंड आउट किए जाते हैं पुरुषों में, मतलब मेल में, है कि नहीं। तो मेल में होने की वजह से अपन क्या कहते हैं इसको, दिस कैरेक्टर इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेल टू मेल। व्हाट इट मींस दैट, फ्रॉम फादर्स टू द डॉटर और सन। किस में जाएगा, ये खाली सन में जाएगा, मतलब मेल टू मेल ट्रांसफर होगा। और ऐसे जब इनहेरिटेंस होता है वाई लिंक्ड वाला, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट इनहेरिटेंस। उसको क्या कहते हैं अपन, स्ट्रेट मींस मेल टू मेल जाएगा। बट इन वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस देयर इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आर देयर। समटाइम्स द जीन्स कम्स फ्रॉम मेल साइड टू फीमेल साइड एंड फीमेल साइड टू मेल साइड। ऐसा अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और जेड स्कीम। तो इसके एग्जांपल के तौर पर अपन कलर ब्लाइंडनेस ये वाला डिसीज लेंगे और उसको अपन पूरा एक्सप्लेन भी कर लेंगे। तो ऐसे ही ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस अंडर द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्लियर दिस पॉइंट, हाउ we call the sex linked inheritance or sex chromosomal inheritance, because by the presence of genes on the sex chromosome we call there is a X linked inheritance and Y linked. इसमें एग्जांपल कौन सा आता है, हेटेरोट्राइकोसिस। कौन सा नाम है इसको, उसको क्या कहते हैं अपन, HETRO, हेटेरोट्राइकोसिस। ये है होलैंडरिक जीन की वजह से आता है। ऐसे अगर एक्स्ट्रा हेयर्स ऑन द ईयर पिन्ना इज नोन एज द हेटेरोट्राइकोसिस कहते हैं। Now best example we taken here from the X linked inheritance is that this can't taken here, but this one is, that is called as the color blind। एक एग्जांपल लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं अपन। फॉर एग्जांपल देयर इज ए कलर ब्लाइंड डिसीज। ये डिसीज है इसलिए अपन कलर ब्लाइंड डिसीज लेते हैं, और कलर ब्लाइंड कैरेक्टर भी लिख सकते हो आप, तो इस हिसाब से उसको ले सकते हैं अपन, कलर ब्लाइंड डिसीज। सो व्हाट इज एक्चुअली द कलर ब्लाइंड एंड व्हाई वी कॉल इट इज अ डिसीज, because it is a disorder related to the eyes। आपकी आंखों और नजरों के साथ जो होता है धोखा, उसको बोलते हैं अपन कलर ब्लाइंड डिसीज। ओके, तो इस हिसाब से कलर ब्लाइंड डिसीज है ये। कलर ब्लाइंड डिसीज का मतलब होता है आंखों की दृष्टि में कुछ अलग दिख जाना या अलग होना, इसको अपन कलर ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अंधा होता है एक्चुअली, मगर अंधा नहीं, और इसकी जगह पे कुछ कलर की जगह पे दूसरी कलर। फॉर एग्जाम्पल इन दिस वन, इन द कलर ब्लाइंड डिसीजेस, the person, what is the definition of color blind disease, the person unable to distinguish red and green color। कौन से कलर अनेबल होता है, रेड और ग्रीन कलर, ये जो दो कलर है इसको नहीं दिखा दे। इट अपीयर्स टू देम एज ग्रे, इसको कैसा दिखता है वो कलर, ग्रे में दिखता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे दो लाइन अपन ने खींच लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, सपोज एक रेड है और एक ग्रीन है सपोज, तो ये दो लाइन अलग अलग नहीं दिखेंगे, उसको ये दो लाइन मर्ज होके ग्रे दिखेगा, तो इसको बोलते हैं अपन कलर ब्लाइंड डिसऑर्डर और डिफेक्ट्स और डिसीज इज देयर, इस हिसाब से। सो हाउ डिफाइन दिस टर्म कलर ब्लाइंडनेस, वी डिफाइन दिस कलर ब्लाइंडनेस एज द पर्सन अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर्स व्हिच अपीयर्स टू हिम एज अ ग्रे कलर। उसको वो कैसा दिखाई देता है, ग्रे देता है, ग्रे दिखाई देता है रेड और ग्रीन की जगह पे, इसी को अपन बोलते हैं कलर ब्लाइंड डिसीज। हाउ दे कम्स, which gene is actually responsible for that the purpose? Now here the genes are responsible for that the purpose of color blindness is the presence of recessive gene onto the non-homologous segment of X chromosome। X chromosome का ये नॉन होमोलोगस सेगमेंट है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा एक कलर ब्लाइंड जीन होता है जो कैरेक्टर कलर ब्लाइंड को फॉलो करता है, इसलिए अपन कलर ब्लाइंड जीन बोलते हैं। ओके, ऐसे कैरेक्टर को फॉलो करने वाला जीन होता है, तो कलर ब्लाइंड यहाँ पे होता है एक्चुअली क्रोमोसोम के मुताबिक। तो ये एक्चुअली कैसे कहाँ जाता है, इनहेरिट होता है, इसके मैकेनिज्म में अपन उसका पूरा प्रूव करके बताएंगे। बट बिफोर दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन आवर आईज ड्यू टू दैट दिस डिसीज कम्स। Actually we know some of the genes are responsible for the formation of some special cells, that is the rod cells and cone cells are there. So here there is a failure of the cone cells with the presence of recessive gene onto the non-homologous segment of the X chromosome। अगर X chromosome के ऊपर ऐसा कोई जीन recessive जीन आता है तो उस समय में आपके रेटिना में वो जो साइट सीइंग क्या बोलते कैरेक्टर्स है, जो कलर डिटरमाइन करने वाले कैरेक्टर्स है, वो सेल्स है, वो एक्चुअली सेल्स इसमें नहीं बनते हैं, कौन सेल्स नहीं बनते हैं।
तो ऐसे समय में वो कौन सेल्स नहीं बनते हैं रेटिना के अंदर में आपके, तो उस समय में आप लोगों को वो कलर का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, वो कलर कहीं दूसरे कलर में कन्वर्ट होकर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रे कलर। तो इसको ऐसे बहुत सारे दूसरे भी है इसमें कलर ब्लाइंड में एग्जांपल, मगर अपन यहाँ एक एग्जांपल लिया है रेड ग्रीन कलर एज मेंशन इन योर बुक्स आर देयर। तो इस वजह से होता है वो डिफेक्ट एक्चुअली क्या है, रेटिना के ऊपर कोन सेल्स का डिफेक्ट है। किसका डिफेक्ट है ये, कोन सेल्स का डिफेक्ट है। जैसे कि राउंड लाइन कोन सेल्स बोलते हैं अपन, आई के स्ट्रक्चर में डिटेल में देखेंगे उसको क्या है, तो ये होता है। अब ये कैसे होता है इसको देखेंगे। नाउ दिस कलर ब्लाइंड डिसीज इज एक्चुअली the presence of recessive gene onto the non-homologous segment of X chromosome. As we know, in the male there is a X and Y combination is there, and in the female there is a XX combination is there. Such type of combination is found in the sex determination of human being, XY male and XX female is there. Now the genes present onto the non-homologous segment of X chromosome is there, as it one is, suppose the color blind disease is indicated by small c is there, and here there is a both small c are there. Now if suppose such type of combination are there, X small c, X small c, then this lady means the female become color blind, because both the recessive genes are live together, which can't suppress the character, but they express themselves as they lie together. One recessive is that of another recessive, and the person become color blind in female particularly. But if suppose there is a instead of that the small c, capital C is there, means the dominant gene is there, क्या इसकी जगह पे स्मॉल सी के डोमिनेंट जीन है, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में ये स्मॉल सी होके भी ये कैपिटल सी के प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। मतलब जो भी लेडी होंगी फीमेल होंगी वो कैसी होंगी, कलर ब्लाइंड नहीं होंगी, डिसीज नहीं होंगी, वो नॉर्मल लेडी तरह की बिहेव करेंगी, बट इट वन इज